Namaskar, my all dear student of class 12. I'm Shikha, your mentor, to help you in the completion of your English syllabus for this session. We have completed 2 chapters from our main course book Flamingo, and this is we are moving ahead towards chapter number 3, Deep Water, written by William Douglas. So first we'll see the author's information, a little introduction, the complete line by line explanation of the chapter, including some important questions. So let's start. Deep Water is written by William Douglas. He was born in 1898 and died in 1980 and was born in Maine, Minnesota. वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? Minnesota में उनका जन्म हुआ था. After graduating with a Bachelor's of Art in English and Economics, he spent 2 years teaching in the school in Yakima. Yakima is a place name. It's a city of Washington, Washington, USA का छोटा सा शहर है. वहाँ पे उन्होंने teaching किया थोड़े टाइम के लिए. किसके बाद? Bachelor's के बाद. Bachelor's is called graduation, means after 12th when you are doing graduation. तो उन्होंने 2 सब्जेक्ट में किया था, English and Economics. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Yale में वो मिले किससे? प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, जो उनके फ्रेंड भी थे और उनके लीगल एडवाइजर के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term of lasting 36 years and remains the longest service justice in the history of the court. उनका जो एडवोकेसी थी, हम बोल सकते हैं वो एडवोकेट थे किसके? इंडिविजुअल राइट के. इंडिविजुअल राइट को जो हम ह्यूमन राइट भी बोलते हैं, उसके वो एडवोकेट थे. एंड उनका जो लीगल करियर था, यानी कि एज अ जज भी उन्होंने काम किया. कितने टाइम के लिए? लगभग 36 साल तक उन्होंने काम किया. और ये सबसे लंबा पीरियड था वहाँ की हिस्ट्री में, लीगल हिस्ट्री में किसी भी जज का इस तौर पे काम करने का. मतलब इतने टाइम के लिए कोई भी जज अभी तक नहीं बना था. द फॉलोइंग एग्जर्प्ट इज टेकन from Man and Mountain by William O. Douglas, and it reveals how a young boy, William Douglas, nearly drowned at the swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. Notice how the autobiographical part, the selection, is used to support his discussion of fear. So this is the part from his book Of Man and Mountain, written by William O. Douglas, and this chapter is taken from this book. उसी बुक से लिया गया है. और इस बुक में क्या बताया गया है? जब वो यंग बॉय थे, जब वो छोटे थे, तो वो किस तरह से डूबने से मरते मरते बचे थे, यानी कि पानी के डर के बारे में उन्होंने लिखा है. और ये एक ऐसे है, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट आप बोल सकते हो. व्हाट इज दैट? व्हेन यू आर राइटिंग द इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ योर सेल्फ, वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, किसी भी फॉर्म में जब आप लिखते हो, आपके साथ जो भी अभी तक हुआ है खुद लिखते हो जब आप, दैट इज कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट. एंड यहाँ पर इसी में इस बुक में उन्होंने अपने वाटर के अफेयर को भी डिस्कस किया है. मतलब एक थोड़ा सा पार्ट है इस बुक का जो इसके दिया गया है और इसको चैप्टर की फॉर्म में डाला गया है. Introduction देखो. In this story, Douglas talks about his fear of water and how he finally overcomes it with a strong willpower, करेज, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. तो यहाँ पे बताया किस तरह से उनको पानी का डर था बहुत ज़्यादा, एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं उसको दूर करूँगा. ओवरकम इज कॉल्ड रिमूव. दूर करूँगा कैसे? अपनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, जो आप बोल सकते हो मजबूत इच्छा शक्ति, अपनी करेज स्ट्रेंथ से, अपनी मेहनत और अपने निश्चय से उन्होंने ठान लिया था कि मुझे इसको दूर करना है. वंस ही टुक द करेज द फेयर वैनिश्ड. एक बार उन्होंने हिम्मत की और उनका ये जो डर था वो चला गया. दैट शोज मोस्ट ऑफ अफेयर are baseless, for creates danger where there is none. The writer's experience further confine the proverbial truth, where there is a will, there is a way. तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने ठांगा, और उससे उनको अपने एक्सपीरियंस से ये सीखने को मिला कि जितने भी फेयर होते हैं वो बेसलेस हैं. बेसलेस इज कॉल्ड लाइक ही वॉज हैविंग द फेयर ऑफ वाटर, बट फॉर अदर पर्सन द वाटर द सेम थिंग वॉज अ मीन्स ऑफ लिवलीहुड, वॉज अ मीन्स ऑफ इंजॉइंग. सो हाउ कैन यू से एक चीज़ जिससे आपको डर लगता है, अगर सबको उससे डर लगता है तब तो वो चीज़ सही है, लेकिन आपको ही सिर्फ डर लगता है, किसी और को डर नहीं लगता, मतलब वो बेसलेस है, उसका कोई
भी बेस नहीं है। तो यही राइटर ने कहा है कि जितने भी तरह के अलग अलग डर होते हैं वो सारे बेसलेस होते हैं, क्योंकि हर आदमी अलग अलग चीज़ों से डरता है, उसका कोई भी बेस नहीं है। यहाँ पे राइटर्स का जो एक्सपीरियंस था वो फेयर क्रिएट्स डेंजर, और ये जो डर होता है यही क्या खतरे को पैदा करता है। यहाँ पर इस अकाउंट को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक जो कहावत है वो बिल्कुल सही बैठती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपने ठान लिया कि हमको ये करना है, nobody can come between you and your determination, then you will be definitely be successful in completing that task। हम जरूर ही उसको पूरा करते हैं। Some expression देखते हैं पहले that are there in the starting of the chapter and with the meaning. The first is treacherous. Treacherous is called unpredictable danger, या आप बोल सकते हो dangerous, खतरनाक। Subdued my pride is called to lower the intensity of self-respect and confidence। अपने आत्मसम्मान को या अपने आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम होता देखना। Then flooded at the surface to strike with energy while trying to come out। Trying to come out यहाँ पे surface के लिए बोला गया है, पानी के डीप मतलब डेप्थ से आप जब ऊपर आने के लिए कोशिश करते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ flooded। Fishing for the landlocked salmon, to go fishing for a specific variety of salmon available in certain lake। Salmon is a kind of fish that is found in many of the lakes, और उसकी fishing के लिए जाना, that is called the landlocked salmon। Misadventure is something, the incident that turns to be a disaster। Adventure is called when you are exploring something, and misadventure when you are meeting with some mishappening during your adventure, कुछ गलत हो जाना, कुछ खतरनाक हो जाना। Bob the surface like a cock, to show the characteristic of buoyancy as a cock in the water। जैसे आपने बॉटल की कॉक देखी है जिसमें वुडन का, लाइट वुडन का एक कॉक होता है, जब उसको झटके के साथ खोलते हैं तो कॉक बहुत दूर से उछल के और दूर जाके गिरता है। सेम दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कंपेयर्ड विद द जंप दैट विलियम डगलस हैज टेकन व्हेन ही वाज डीप इन द वाटर एंड ही जंप ऑन द दैट बेड of the swimming pool to come up like a spring or like the cock on the surface of the water। तो उसके लिए ये आया है। Curtain of life fell means to indicate that life has ended। Back and forth across the pool is called to swim across the swimming pool from one side to the other। एक तरफ से दूसरी तरफ swimming pool के तैर कर जाना, that is the meaning of this। Now we start the chapter। यहाँ से हमारा chapter start होता है। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। The Yakima River was treacherous। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river, but the YMCA pool was सेफ। यहाँ पे बताया गया है कि जब वो 10 या 11 साल के थे, अब आप 10 या 11 साल के होंगे तो ऑब्वियसली समथिंग दैट हैज शेकन यू, जो उसने आपको हिला दिया, वो चीज़ आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। तो वही अकाउंट इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। YMCA is Young Men's Christian Association। It's a we can say it's a chain of the organization। बहुत जगह इनके इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया में भी हैं, जो सिखाते हैं स्विमिंग बच्चों को। Yakima is a city of Washington state and treacherous is called dangerous। तो वो बताते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ठाना कि मुझे स्विमिंग सीखना है, और इसके लिए उन्होंने YMCA पुल का चुनाव किया, जो कहाँ पे था, यकीमा। यकीमा इज़ अ प्लेस ऑफ वॉशिंगटन DC। ये पूरा US का आप मैप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस इज़ यकीमा सिटी। तो यहाँ पे ही वो जो उन्होंने अपना करियर परस्यू किया था, अभी यहाँ पे स्टार्टिंग से ही वो यहाँ पे रहते हैं, वहीं की बात वो कर रहे हैं। उनको जो चाहिए था YMCA पुल वही अपॉर्चुनिटी देता था बच्चों को सिखाने की, बट once you get very acquainted with the water bodies, then you are trying to go and have the experience of other water bodies। यानी कि आपने सीख लिया तो आपको लगता है आप स्विमिंग कर सकते हो, बट विलियम डगलस की जो माँ थी वो हमेशा उनको ये वॉर्न करती रहती थी कि यहाँ पे हमारे यकीमा सिटी में जो यकीमा रिवर है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ पे किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्लो है, उसकी डेप्थ है, दैट इज़ रियली वी कैन से ना द डेंजरस एज द लाइफ थ्रेटनिंग। बहुत सारे लोगों की वहाँ पे जान गई है। ईच
टीच ड्राउनिंग, ड्राउनिंग इज कॉल्ड, सबकी बहुत सारी लोगों की डूबने से वहाँ पे डेथ हो गई थी, तो वही उनको कंटिन्यूसली वो याद दिलाती रहती थी कि यहाँ पर आपको नहीं जाना है, मतलब वो हमेशा वार्न करती थी कि तुम कहीं भी जाओ बट यकीमा रिवर में स्विमिंग करने नहीं जाना है। YMCA पुल वॉज सेफ, जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे स्विमिंग सीखूंगा, वो जो पुल था वो सेफ था, यानी कि वहाँ के लिए उनकी मदर ने मना नहीं किया था। वहाँ पर सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते थे जो ज़रूरी थे छोटे बच्चों को या किसी को भी स्विमिंग सिखाने के लिए। आगे चलते हैं। 2 or 3, it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. See the words. Subdued is called to overcome, pride is called the honor or self-respect, and drop means the slope from the shallow end to the deep end. So how was the swimming pool like? We can say this was the gradual depth. This is the sea bed. आप बोल सकते हो ये swimming pool का bed है. This is the one side, this is the either side, and यहाँ पे इस तरह से depth थी, ये इस तरह से डेप्थ थी, यानी कि वो ग्रेजुअल थी, जो डेप्थ थी वो कैसी थी, ग्रेजुअल। तो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस साइड, ये कितना था, 2 से 3 फीट था, ठीक है, और ये दूसरी तरफ लगभग 9 फीट था। तो वही राइटर ने बताया है कि जो पुल था वो एक तरफ तो कैसा था, शैलो इज कॉल्ड कम डीप, जहाँ पे कम गहरा होता है, और डीपर एक तरफ बहुत गहरा था। तो दिस साइड वॉज सेफ फॉर चिल्ड्रन, टू गिव द ट्रेनिंग टू द चिल्ड्रन, ये साइड सेफ था। एंड व्हेन यू आर कम as a trained swimmer you are allowed to go there, ये बड़े लोगों के लिए था। तो ये जो था वो ग्रेजुअल, यानी कि स्लोली था ये जो स्लोप था। अब यहाँ पर उनको तो वाटर विंग्स दिए गए थे ना, वाटर विंग्स, these are the water wings that makes you feel comfortable, relax, and they are just working like a shield while you are going to learn the swimming. छोटे छोटे बच्चों को दिए जाते हैं, they are filled with the air, ठीक है, एयर फिल्ड होते हैं, and they keeps you on the water surface, आपको डूबने नहीं देते हैं, आप ऊपर ही रहते हो पानी की सरफेस की तरफ। तो ये उसको पहनने के लिए दिए गए, बट उसको एक चीज़ से नफरत थी। किस चीज़ से? लाइक स्विमिंग, इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू डू, यू कैन नॉट वेयर द फॉर्मल और इनफॉर्मल क्लॉथ, आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना ही पड़ेगा। तो वो छोटा बच्चा था, उसको अच्छा नहीं लगता था बिना कपड़ों के घूमना और अपने स्किनी लैग्स को शो करना। स्किनी लैग्स हम बोल सकते हैं बहुत लीन एंड थिन, वो पतले दुबले थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, बट उनको इस चीज़ को अपना दूर करना पड़ा। एक तरह से उनके रिस्पेक्ट की बात थी, बट उनको स्विमिंग लर्न करना था, तो उन्होंने इस चीज़ को अपना एक तरफ रखा, कॉम्प्रोमाइज़ किया, एंड नाउ ही वॉज रेडी टू लर्न द स्विमिंग। अभी यकीमा रिवर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। द यकीमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन, USA। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनियस यकामा पीपल। तो ये यकीमा रिवर है जो कि वाशिंगटन के ईस्ट पार्ट की तरफ पड़ती है। ये पूरी एक कैलिफोर्निया रिवर जो वहाँ पे है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, यानी वो उसी में से निकलती है। यहाँ पर आने के बाद, यकीमा प्लेस पे आने के बाद इसका नाम यकीमा पड़ गया, और जो प्लेस का नाम है वो किस पर पड़ा है, यकामा। इट्स अ नेटिव अमेरिकन ट्राइब इनहाबिटिंग वाशिंगटन DC, USA। तो वाशिंगटन स्टेट में एक ट्राइब है, जैसे हमारे इंडियन में ट्राइब होती हैं, बहुत सारी होती हैं, तो ये वहाँ की नेटिव ट्राइब है और इनका नाम है यकामा, और इन्हीं के नाम पर उस प्लेस का, उस जगह का, उस सिटी का नाम पड़ा यकीमा, और उस सिटी के नाम पर रिवर का नाम पड़ा यकीमा। तो ये यकीमा रिवर है जिसकी इस चैप्टर में चर्चा की गई है। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old, and father took me to the beach of California. Aversion is called not liking something or someone, किसी चीज़ को पसंद ना करना। तो बताते हैं कि जब वो 3 या 4 साल के थे, कब स्टार्ट हुआ, क्या चीज़ स्टार्ट हुआ, फेयर ऑफ वाटर। उनको पानी से डर लगता था, नफरत थी। क्यों थी? उसकी कोई वजह थी, वो वजह बता रहे हैं। तो पहला जो इंसिडेंट हुआ था when he was 3 to 4 years of age. Now 3 to 4 years वो कैसे याद रख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
10 या 11 साल का तो उनको याद होगा, बट दिस वॉज समथिंग बिफोर दैट, ठीक है, ये उससे भी पहले का था जो घटना हुई थी. So, if something happened with you that is related with some negativity or that has just create a milestone और turning point हो आपकी लाइफ का, कभी आप मरने वाले हो, बहुत अच्छा कुछ हुआ, तो ऐसी चीज़ें बार बार फैमिली मेम्बर या जो नोन पीपल होते हैं वो याद दिलाते रहते हैं. तो वही हम बोल सकते हैं कि उनको उनके फैमिली मेम्बर के थ्रू याद होगा कि भाई तुम 3 या 4 साल के थे तब तुम्हारे साथ ये हुआ था. तो उनको वो जो चीज़ याद थी उन्होंने इस बुक में लिखी है अपनी. तो उन्होंने बताया कि जब वो 3-4 साल के थे तभी से उनको पानी से नफरत हो गई थी, वो पसंद नहीं करते थे. क्या हुआ था, वो अपने फादर के साथ बीच पर गए थे कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया बीच पर. He and I stood together in the surf. I hung on to him. Yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was a terror in my heart at the overpowering force of the waves. Knocked me down is called overpower me या गिरा देना, ठीक है. Then overpowering is called quite powerful. कुछ चीज़ थी जो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल थी, जिसने उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था. वो चीज़ बता रहे हैं कि वो दोनों साथ में खड़े थे सर्फ में. सर्फ आप बोल सकते हो ये जो फॉर्म होता है, फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, फेना आप ये बोल सकते हो, ये जो फेना है, ये फेन बोलते हैं ना हम इसको, फॉर्म सा होता है, वहाँ पे वो लोग खड़े हुए थे और वो बिल्कुल अपने फादर की तरफ लटके हुए थे. छोटा सा बच्चा था, पानी से डर लग रहा था, तो फादर पे बिल्कुल लटका जा रहा था, हंग इट ऑल. देन एक बहुत बड़ी सी जो वेव आती है और उनको अपने साथ बहा कर ले जाती है. स्वेप्ट ओवर इज कॉल्ड, उनको अपने साथ बहा कर ले जाती है. उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो पानी में बिल्कुल दफन हो गए हैं, उनकी सांस चली गई, वो बहुत डरे हुए थे. बट उनके जो फादर थे, ही वॉज लाफिंग. बट with this incident there was a terror that was left in his heart. एक परमानेंट, एक बहुत भयानक सा डर उनके मन में बैठ गया, छोटे से बच्चे के मन में. किसके लिए? पानी के लिए. और उनको क्या लगा कि ये जो वाटर वेव्स हैं, दे आर रियली स्ट्रॉन्ग दैन मी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इनसे नहीं जीत सकता हूँ. तो यहीं से उनको पानी से नफरत होना स्टार्ट हो गया. My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. अब वो ये बता रहे हैं कि अब उन्होंने यहाँ पर YMCA पुल में लर्निंग करना शुरू कर दिया है. अभी तक हमने जो पढ़ा वो थोड़ा सा अपना फ्लैशबैक का, जब वो 3-4 साल के थे जब ये हुआ था, वो उन्होंने शेयर किया. अब वो वापस वही शेयर कर रहे हैं जब वो 10-11 साल के थे. रिवाइव्ड इज कॉल्ड ब्रॉट बैक टू माइंड. एपिंग मीन्स टू कॉपी समथिंग. स्टेयर्ड इज कॉल्ड टू मेक और मूव. एंड मिस एडवेंचर इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट और मिस हैपनिंग. तो वो बता रहे हैं कि जब वो स्विमिंग पूल में उन्होंने लर्न करना शुरू कर दिया, तभी उनका जो चाइल्डिश फेयर था, जो उस टाइम पे 3-4 साल में जो डर था पानी के लिए, वो दोबारा वापस आ गया. लेकिन उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया एंड ही स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग. किस तरह से? पैडल्ड विद माय न्यू वाटर विंग्स. जैसे इस तरह से हाथ हिलाने होते हैं आपको स्विमिंग के लिए. कीप्स ऑन मूविंग, कंटिन्यूसली आपको अपने हाथ और पैर मूव करने होते हैं. तो वो वही कर रहे थे, पैडल कर रहे थे अपने न्यू वाटर विंग से. और क्या कर रहे थे? वो दूसरे बच्चों को देख रहे थे, जो और लड़के थे उनको कॉपी करके उनकी जैसे करने का कोशिश कर रहे थे. यानी कि दूसरे भी जो बच्चे सीख रहे थे उनको देखकर वो सीख रहे थे. आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel the ease in the water when the misadventure happened. अब उनको 2-3 दिन हो गए हैं YMCA पुल में स्विमिंग सीखते हुए और धीरे धीरे उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है और उनको अच्छा लग रहा है. मीन्स ही वॉज फीलिंग कंफर्टेबल विद द वाटर, क्योंकि धीरे धीरे वो स्विमिंग सीखने लगे थे और पानी में ज़्यादा देर तक रहने से धीरे धीरे उनका डर जो था वो जा रहा था. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, एक मिस हैपनिंग हुई जिसने अगेन उनके पानी के लिए अवर्जन उनके मन में ला दिया. अब वो क्या था वो देखते हैं हम. आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर. द प्लेस वॉज क्वाइट. द वाटर वॉज स्टिल एंड टाइल्ड बॉटम वॉज as white, as clean as the bathtub. I was timid about going in alone, so I sit on a side of the pool to wait for others. अब एक दिन का वो बात बता रहे हैं कि एक दिन थोड़ा जल्दी वो पहुंच गए YMCA पुल पे एंड वहाँ पे कोई भी नहीं था. पूरा जो प्लेस था वो कैसा था? एकदम शांत था और जो वाटर था वो बिल्कुल स्टिल था. स्टिल इसका कोई मूवमेंट नहीं था उसमें, एकदम पानी ठहरा हुआ था और उनको बिल्कुल नीचे तक का टाइल्ड बॉटम लेवल दिख रहा था और वो बिल्कुल वाइट था, वाइट और एकदम क्लीन जैसे
कि एक वाइट कलर का बाथ टब होता है। और अभी वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वाई? बिकॉज ही वॉज टिमिड। टिमिड इज कॉल्ड शाय एंड नर्वस। किसी चीज़ को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाना, तो वो क्या नहीं जुटा पा रहे थे, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू गो इन साइड द पुल अलोन। अलोन कोई भी था नहीं, और दिन तो सब लोग होते हैं, लेकिन उस दिन वो जल्दी आ गए थे, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अकेले चले जाएं, इसीलिए वो एक तरफ पुल के बैठ जाते हैं, एट वन साइड। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny, how would you like to be ducked?" Now, ducked is called to push or plunge someone under the water. किसी को धक्का दे देना. Rippling is called flowing with the series of the small waves. Rippling इस तरह से आप बोल सकते हो, इस तरह का जो इफेक्ट होता है वो. And the brusher, we can say a person who is tough and aggressive and enjoys a fight or an argument. मतलब नौजवान आप जिसको बोल सकते हो, जिसकी मसल्स होती हैं, अच्छा फिट नौजवान आप ऐसे बोल सकते हो. तो जैसे जब वो अकेले बैठे हुए थे, तभी क्या हुआ, एक बिग ब्रुशर मतलब एक नौजवान वहाँ पे लड़का आया, एंड प्रोबेबली ही वाज ऑफ 18 ईयर्स. ठीक है, वो यंग बॉय था. उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया है कि उसके जो चेस्ट पे बहुत घने बाल थे, ठीक है, जो चेस्ट पे बाल होते हैं, थिक हेयर्स थे. और अगर हम बोला जाए, स्पेसिमैन इज कॉल्ड कॉपी. ठीक है, तो वो बिल्कुल कॉपी लग रहा था. किसका कॉपी लग रहा था? एक फिट पर्सन के. जैसे कि एक फिट पर्सन होता है, एब्सोल्युटली फिट. अगर बोला जाए कि भाई फिट पर्सन कैसे होते हैं, तो ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, मतलब उसका जो फिजिक था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत फिट लग रहा था देखने में, तो वो एक तरह से कॉपी था. बोल सकते हैं कि भाई ऐसा होता है जो फिट मैन होता है. उसके जो लेग्स और आर्म्स थे, दैट आर शोइंग द रिपलिंग मसल. रिपलिंग इज कॉल्ड, यहाँ पे आप बोल सकते हो रिपल इफेक्ट ये होता है मसल के लिए. अगर आप बोलोगे तो ये बोल सकते हो, जैसे ये हमारा हैंड है, तो यहाँ पे बाहर ये जो अब इस तरह से जो बोलते हैं भाई मसल्स दिखाते हैं हम अपनी, रिपलिंग उभरती हुई, मतलब ताजी पुष्ट, जिसको हष्ट पुष्ट बोलते हैं, हेल्दी मसल्स उसकी थी. एंड ये येल्ड इज कॉल्ड, वो चिल्लाया. आप बोल सकते हो लाउड. ठीक है, लाउडली उसने बहुत तेज़ी के साथ बोला, हाय स्किनी. स्किनी उसने किसको एड्रेस किया? विलियम डगलस को. उसको बोला क्योंकि वो दुबले पतले से थे, तो उनको उसका नाम तो पता नहीं था, तो उसने बोल दिया स्किनी. उसको बोला कि दुबले पतले से लड़के, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुमको पुश कर दूँ, अगर मैं तुमको पानी में फेंक दूँ, तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? ये उसने बहुत तेज़ी के साथ बोला. तो यहाँ पे क्या हुआ है, विलियम डगलस अभी बैठे हुए हैं, तभी वहाँ पे एक नौजवान लड़का आता है और वो उनको बोलता है कि क्या मैं तुम्हें उठाकर पानी में फेंक दूँ. मतलब एक तरह से फनी वे में वो बोलता है. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, swallowed वाटर एंड went at once to the bottom. जैसे ही उसने ये बोला, टॉस्ड इज कॉल्ड थ्रो समथिंग केयरलेसली एंड विट्स इट कॉल्ड इंटेलिजेंस. मैं कुछ समझ पाता, मतलब छोटे से बच्चे ने देखा, वो अचानक से आया, उसने कुछ बोला और उस बच्चे को उठा के और पानी में फेंक दिया. मतलब राइटर के पास कुछ समय भी नहीं था उस बच्चे के पास कुछ सोचने का, कुछ समझने का कि क्या होने वाला है, और उसने उसको उठाकर पानी में कहाँ फेंका? डीपर एंड पे. जो मैंने बताया था कि यहाँ पे इस तरह का जो एंड था ये, तो वो जो राइटर थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे, उसने उनको उठाकर यहाँ पे डीपर एंड पे, जहाँ 9 फीट था, वहां पर उनको फेंक दिया. और वो बैठे हुए थे, तो वो उसी पोजीशन में ही नीचे जा रहे थे. मतलब उसने इस तरह से उठाया और ऐसे फेंका, तो वो सिटिंग पोजीशन में ही नीचे जा रहे थे, और उनके मुंह में पानी चला गया. स्वॉलोड इज कॉल्ड निगलना. तो उनके मुंह में बहुत ज़्यादा पानी चला गया, और वो कहाँ चले गए? एक बार तो वो बिल्कुल बॉटम पे चले गए. मतलब जो टॉस था, जो उसने फेंका था, वो इतना तेज था कि वो सीधे नीचे बॉटम की तरफ चले गए. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface and flat, and the paddle to the edge of the pool. अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन फिर भी वो इतने भी डरे हुए नहीं थे कि अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकें. तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा, मैं बहुत तेज़ी के साथ जंप करूँगा, जिससे कि मैं ऊपर आ जाऊँ, सरफेस यानी कि पानी के ऊपर आ जाऊँ,
लाई फ्लैट ऑन इट, मैं पानी के ऊपर बिल्कुल आके और बिल्कुल फ्लैट हो जाऊंगा, लेट जाऊंगा, एंड उसके बाद मैं क्या करने लगूंगा, पैडल पैडल टू द एज ऑफ पुल। एज ऑफ पुल मतलब स्विमिंग पूल के किनारे की तरह, मतलब वो बीच में थे तो वो जंप करेंगे तो पानी के सरफेस पे आ जाएंगे, उसके बाद लेटने के बाद वो पैडल करेंगे जिससे कि वो किनारे तक पहुंच जाए। तो ये उन्होंने प्लान बनाया। तो हमने देखा यहाँ पे कि अभी वो कहाँ है, ही वॉज डीपर इन द वाटर, वेरी डीपर। Now it seemed a long way down. Those 9 feet were more than 90, and before I touched the bottom, my lungs were ready to burst. अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही वो नीचे जा रहे थे उनको ये बहुत लंबा रास्ता लग रहा था, मतलब 9 फीट की गहराई पे जो उसने फेंका था नीचे, वो उनको 90 फीट लग रहा था। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जब आप डरे हुए होते हो तो उससे भी ज़्यादा डर का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाता है। तो वही उनके साथ हुआ था। यहाँ पर उनको जो 9 फीट थे वो 90 फीट लग रहे थे, मतलब उनको ऐसा लग रहा था जितना कितनी दूर है। जो उन्होंने सोचा था कि वो जंप करके ऊपर आ जाएंगे वो उनको पॉसिबल नहीं लग रहा था। 9 फीट का 90 फीट हो गया था, उनको ऐसा लग रहा था। एंड उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जो लंग्स हैं, आई टच्ड बॉटम, बिल्कुल उनको स्विमिंग पूल का बॉटम उन्होंने टच किया, और उनके जो लंग्स थे, मतलब पानी भरता जा रहा था उनके लंग्स में, और उनको लग रहा था कि अभी मेरे लंग्स बस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। But when my feet hit the bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने जब बॉटम टच किया तभी भी उनमें वो विल पावर थी, उनकी प्लानिंग थी कि मैं जो बॉटम है उसको अच्छे से जंप करके और मैं स्प्रिंग की तरह ऊपर आ जाऊंगा, मैं बहुत तेज़, ग्रेट स्प्रिंग इज कॉल्ड, बहुत तेज़ उछाल लूंगा, समाउंड इज कॉल्ड गैदर्ड, एंड बॉब इज कॉल्ड मूविंग क्विकली अप एंड डाउन जंप। बहुत तेज़ी के साथ मैं ऊपर आऊँगा, जिस तरह से एक बॉटल से कॉक निकलती है। यानी कि अगर आप यहाँ से प्रेशर निकालोगे तो ये कॉक जंप करके बहुत दूर जाती है, बिल्कुल वैसे ही वो सोच रहे थे कि अगर मैं जंप करूँगा बॉटम से तो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर आ जाऊँगा, एंड फिर मैं सरफेस पे आ सकता हूँ। बट जैसे ही वो नीचे गए वो ऊपर बहुत धीरे धीरे आ रहे थे, मतलब उन्होंने जंप तो किया, जैसे ही बॉटम टच हुआ उन्होंने जंप किया, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग अपवर्ड्स वेरी फास्ट ही वॉज गोइंग अपवर्ड्स वेरी स्लोली। बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, मतलब वो जंप उनका काम नहीं कर रहा था। उन्होंने आईज ओपन किया, चारों तरफ क्या देखा, सिर्फ पानी ही पानी था, मतलब वो पूरी तरह से पानी से घिरे हुए थे। Now here, water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panically. I reached up as if to grab the rope, and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. Clutched is called to handle or to hold something tightly when afraid or excited. दिस इज एक्साइटेड. टिंज इज कॉल्ड अ टच ऑफ कलर. तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने आंखें खोली पानी ही पानी, और वो तो उसमें थोड़ा सा येलो कलर का एक टच था। येलो कलर का मतलब पानी थोड़ा सा गंदा था, जब गंदा हो जाता है, अब स्विमिंग पूल का जो पानी है वो रोज़ डेली वी कैन नॉट वॉश दैट, हम साफ़ नहीं कर सकते हैं, बहुत वास्ट लेवल पे पानी होता है, बहुत सारे लोग आते हैं स्विमिंग करने। तो जब उन्होंने आंखें खोली तो उनको कुछ येलोइश सा वाटर दिखाई दे रहा था, और ग्रू पैनिकली वो परेशान होना शुरू हो गए, उनको डर लगने लगा, एंड वो जो पहुंच गए थे ऊपर सरफेस पे, अब वो अपने हाथों से इस तरह से कोशिश कर रहे थे कुछ पकड़ने की। स्विमिंग पूल में ज़्यादातर रोप्स होती हैं, ठीक है, साइड में होती हैं, और जो स्विमिंग करते हैं उनके बंधी भी होती हैं एक साइड, वहाँ पे होता है कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कम एट द सर्फेस। तो ही वॉज ट्राइंग टू क्लच द रोप हेयर एंड देयर, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या आ रहा था? सिर्फ और सिर्फ पानी, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, एंड ही वॉज सफोकेटिंग. सफोकेटिंग इज कॉल्ड ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ. उनको ऐसा लग रहा था कि उनका दम घुट रहा है, और उन्होंने चिल्लाने का, येल इज कॉल्ड टू कॉल, उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, बट ही वॉज नॉट एबल. कोई भी साउंड नहीं आ रही थी, उनकी आंखों में, उनकी नाक में, हर जगह पानी ही पानी था, और उन्होंने ये सोचा कि माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, मेरा जो आंखें हैं, एक बार के लिए उनकी जो आंखें हैं और नाक जो है वो पानी के बाहर आई, बट उनका जो मुंह था वो अभी भी अंदर था। यानी कि उनकी जो क्या कंडीशन हम बोल सकते हैं कि ही वॉज टोटली बरीड इन द वाटर, वो पूरी तरह से पानी में घिरे हुए थे.
I flooded at the surface. This is the expression जो हमने पढ़ा था. Of the water swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. Rigid is called hard and tight, and flooded is called the wave. Flooded the surface यानी कि पानी के ऊपर इस तरह से तैरना, बहुत मुश्किल से हार्ड वर्क करना टू कम ऑन द सरफेस. तो ही वॉज जस्ट डूइंग लाइक दैट. वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे पानी के सरफेस पे आने के लिए, बट वो सिर्फ सफोकेट हो रहे थे, चोक हो रहे थे. चोक अगेन इज कॉल्ड, ही वाज नॉट एबल टू ब्रीथ. उनको ऐसा लग रहा था अभी दम घुट जाएगा, अभी उनकी डेथ हो जाएगी, और वो सिर्फ और सिर्फ पानी ही स्वॉलो कर रहे थे. बार बार जितनी बार वो मुंह खोलने की कोशिश करते थे पानी उनके मुंह में जाता था. अब वो चिल्लाएंगे तो मुंह खोलेंगे तो पानी अंदर जाएगा. जितने भी आउटर पार्ट्स थे, नाक से, आँख से, कान से, हर जगह से पानी अंदर जा रहा था. एंड उन्होंने अपने जो लेग्स थे उनको ऊपर लाने के लिए ट्राई किया, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक डेड पर्सन की तरह हंग गए, यानी कि उनको अपने पैरों में जान महसूस नहीं हो रही थी. वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए थे, एकदम हार्ड और टाइट हो गए थे. मतलब ही वॉज नॉट एबल टू कमांड हिज ओन लैग. ऐसा लग रहा था उनका कंट्रोल ही नहीं रहा है अपने लेग्स पे, वो पैरालाइज्ड हो गए हैं. कोई भी सेंसेशन नहीं हो रहा था उनको अपने पैरों का. और उनको ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था जैसे कि नीचे कोई फोर्स है, कोई पावर है, कोई स्ट्रेंथ है जो उनको नीचे की तरफ खींच रही है. मतलब वो क्या कर रहे हैं, ही वॉज ट्राइंग टू कम अप, बट देयर इज सम पावर दैट वॉज पुलिंग हिम अगैन इनसाइड टुवर्ड्स द डाउन. बट ओनली वाटर. वो चिल्लाए, उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी ही उनको सुन सकता था. जितनी भी बार वो चिल्लाने की कोशिश करते थे, मुंह खोलते थे, अगेन एंड अगेन वाटर गोज इनसाइड. अब उनको बहुत दोबारा से बहुत लंबी जर्नी पे वो नीचे की तरफ जा रहे थे. यानी कि क्या हुआ, जब उसने लड़के ने उनको फेंका तो वो नीचे की तरफ जा रहे थे. एक बार उन्होंने बॉटम टच किया, जब उन्होंने जंप किया धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से सरफेस पर नहीं आ पाए, और again he was going down. That was why it is written long journey, because it was looking like the 90 feet to him. उनको ऐसा लग रहा था वो फिर से पूरी जर्नी पर नीचे जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई नीचे है जो उनको खींच रहा है. तो दैट वॉज द थिंग कि वो दोबारा से बॉटम की तरफ जा रहे थे. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in the nightmare writes, an irresistible force. I had lost all my breath. Expending is called losing or giving out. Throbbed means felt pain in the series of regular beats. And spring is called to jump quickly. अब वो बता रहे हैं I struck at the water. वो फंस गए थे, बिल्कुल पानी में ट्रैप हो गए थे, दोबारा से वो नीचे जा रहे थे. And expending my strength. उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी सारी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं और किसी नाइटमेयर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. नाइटमेयर मतलब उनको ऐसा लगता है ये बहुत बुरा सा सपना है. ही वॉज नॉट एबल टू फील द वर्ड, द रियलिटी, द एवरीथिंग, ओनली द वाटर वाटर. तो उनको ऐसा लग रहा था बहुत भयानक सा एक सपना है जिससे वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. एन इररेसिस्टिबल फोर्स, और एक जो वो रेजिस्टिबल वी कैन से एक फोर्स है जो परमानेंट फोर्स है, उसका ज़रा सा भी कंट्रोल कम नहीं हुआ है. वो जो फोर्स है वो पानी के अंदर है, जो वो उनको पानी के नीचे खींच रही है. एंड जितनी भी उनकी ब्रेथ थी वो सारी खत्म हो गई थी. मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं. माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रोब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी, बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस. अभी भी उनमें इतना डिटर्मिनेशन था, उस छोटे से बच्चे में. वो अभी भी सोच रहा था बचने के लिए, तब पूरी ताकत लगा रहा था, अलग अलग प्लानिंग कर रहे थे वो. यहाँ पर उनकी कंडीशन बताई गई कि अब उनके फेफड़ों में, लंग्स में दर्द होने लगा, क्योंकि पानी कंटिन्यूसली उसमें भर रहा था. जो कैपेसिटी होती है लंग्स की, लंग्स में पानी नहीं जाना चाहिए, बट वो ज़रूरत से ज़्यादा उनके लंग्स में पानी जा रहा था, नाक के थ्रू, माउथ के थ्रू. और उनका जो सिर था वहाँ पर, उसमें रेगुलरली पेन होने लगा, स्टार्ट होने लगा, बहुत तेज़ी से दर्द होने लगा. ऐसा लग रहा था रह रह के उनके कोई हथौड़े, जैसे बोलते लगता है ना कि कोई हथौड़े मार रहा है, बहुत रह रह के जो दर्द उठता है वो उनके सिर में हो रहा था. एंड वो कैसा फील कर रहे थे? डिजी. मीन ही वॉज जस्ट लाइंग टू बीइंग अनकॉन्शियस. ऐसा लग रहा
था वो सो जाएंगे, उनमें कोई भी जान नहीं रह जाएगी. बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड प्लानिंग. अभी भी उनको वो प्लानिंग याद थी, क्योंकि उसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकते थे. कि जैसे ही वो बॉटम टच करेंगे वो बहुत तेज़ी के साथ जंप करेंगे, जैसे कि कॉक जो को खुला जाता है और वो सरफेस पे बहुत दूर जाके गिरती है, सेम ऐसे वो जंप करेंगे जिससे कि वो सरफेस की तरफ आ जाएं. तो यहाँ हमने देखा कि वो दूसरी बार नीचे जा रहे हैं. एक बार बॉटम पे गए, फिर ऊपर आने की कोशिश किया, अब वो फिर से जा रहे हैं. नाउ I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge, to the pool and be safe. Strike is called extend. Thrash is called to hit someone or something many times. बहुत तेज़ी के साथ पीटना. यहाँ पर अब वो क्या बोल रहे थे, सोच रहे थे कि मैं फिर से जंप करूँगा, सरफेस के ऊपर आ जाऊँगा और फिर मैं लेट जाऊँगा, यानी कि सरफेस पे इस तरह से लेट जाऊँगा. एंड स्ट्राइक द वाटर विथ माई आर्म्स. स्ट्राइक मतलब मारना, ठीक है, एक्सटेंड करना, मारना किसी चीज़ को. मैं पानी को मारूंगा, इस तरह से मारने का मतलब पैडल करूंगा जिससे कि मैं साइड में आ जाऊं, किनारे पर आ जाऊं. एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और बार बार मैं अपने पैरों को हिट करूंगा. ठीक है, कैसे, पानी के ऊपर बार बार हिट करूंगा, क्योंकि उनको अभी स्विमिंग सीखते हुए 2 या 3 दिन हुए थे बस. तो 2 या 3 दिन में उनको नहीं पता था कि किस तरह से स्विमिंग करते हैं, या किस तरह से नीचे से ऊपर आने के बाद किनारे पर या साइड में आने के लिए किस तरह से हाथ और पैर को पैडल करना है, कैसे मूवमेंट करना है, नहीं पता था उनको. बट वो अपने एक बच्चे की, छोटे बच्चे की समझ के तौर पर वो ये कर रहे थे कि मैं बार बार पानी को हिट करूंगा जिससे कि मैं पूल पर सेफ आ जाऊं, सरफेस पर, और उसके बाद मैं एज पर, सरफेस यानी कि स्विमिंग पूल के किनारे पे सेफली पहुंच जाऊंगा. आई वेंट डाउन एंडलेसली. आई ओपन माई आईज, नथिंग बट द वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. अभी वो ये सोच तो रहे थे, लेकिन वो कंटिन्यूसली नीचे और नीचे जाते जा रहे थे. ऐसा लग रहा था कि ये जो डेप्थ है वो एंडलेसली, यानी कभी खत्म होने वाली नहीं है. क्या दिख रहा था, उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली उनको सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया, एक येलो कलर का गंदा पानी, और डार्क इज कॉल्ड नीचे अंधेरा. आप जैसे ही थोड़ा सा ऊपर होते हो पानी के लेवल पे तो आपको थोड़ी सी लाइट दिखती है. वाई? बिकॉज द रे ऑफ द लाइट कैन गो टिल अ सर्टेन डेप्थ. वहाँ तक तो आपको रोशनी दिखती है. जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हो सब कुछ अंधेरा होने लगता है. उनको वही दिख रहा था, बहुत डार्क दिख रहा था, जिसके आर पार कोई भी नहीं देख सकता था. सी थ्रू का मतलब क्या हुआ, कोई भी उसके आर पार नहीं देख सकता था. यहाँ पे स्ट्राइक आप हिट भी बोल सकते हो, मतलब मारना पानी को. Now, and then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. अब वो बता रहे हैं seized is called paused. उनको इतना ज़्यादा डर लग रहा था. स्टार्क इज कॉल्ड सेवियर, बहुत सेवियर, बहुत तेज़ी के साथ उनको बहुत ज़्यादा वाला डर लग रहा था, और उस डर ने उनको रोक दिया, उनके हाथ पाँव को जाम कर दिया. ऐसा टेरर, ऐसा डर जो किसी को नहीं समझता है, जिसको कोई नहीं समझ सकता. टेरर जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, डर, और वो डर जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने एक्सपीरियंस किया हो. बाकी जो और हैं जिन्होंने उस टेरर के थ्रू नहीं गुजरे हो वो उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं. Now I was shrieking under the water. I was paralyzed under water, stiff, rigid with fear. Even the scream in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. Shrieking is called to say something loudly in high voice tone, and paralyzed is called incapable of मूवमेंट. अब वो बता रहे हैं कि ही वॉज श्रीकिंग, यानी कि वो चिल्लाने की, बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, बट उनकी जो पूरी बॉडी थी वो पैरालाइज्ड हो गई थी, पानी के अंदर बिल्कुल जाम हो गई थी, एकदम टाइट हो गई थी, और उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. इवन द स्क्रीम्स, जो स्क्रीम्स उनकी चीखें हैं, स्क्रीम्स कॉल, जो उनकी चीखें हैं वो उनके गले में फ्रोज हो गई थी. फ्रोज इज कॉल, ही वॉज नॉट एबल टू श्रीक, वो चिल्लाने नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि चीखें अंदर जम गई हैं. एंड देन ओनली माई हार्ट, सिर्फ उनका हार्ट था जो कि पाउंड कर रहा था, जो कि बीट कर रहा था इन माई हेड. उनको लग रहा था, महसूस हो रहा था कि हाँ उनके जो हार्ट है अभी धक 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 इस तरह की आवाज़ आ रही है, जिससे उनको पता चल रहा था कि हाँ अभी मैं जिंदा हूँ. तो अगर हम सेंसेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में उनको ऐसा लगा अभी उनके जो लंग्स हैं वो बस्ट हो जाएंगे, उनके
हेड में रह के पेन हो रहा था, एंड अब उनको ये लग रहा था उनके हाथ और पैर दोनों सारे पूरा जो बॉडी था वो पैरालाइज्ड हो गया था, एंड अब उनको क्या लग रहा था कि वो जिंदा है, मतलब और कोई भी चीज़ उनको महसूस नहीं हो रही थी, सिर्फ यही लग रहा था कि वो अलाइव है। और ये कैसे पता चल रहा था कि ही वॉज एबल टू जस्ट फील, थोड़ा सा सेंसेशन बाकी रह गया था जो ये बता रहा था कि हाँ तुम अभी जिंदा हो। तो आगे देखते हैं, एंड दैन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ अ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, एंड एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स under me and toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. Midst is called mid of something, in the middle of something. अब फिर से वो बॉटम की तरफ जा रहे हैं दूसरी बार, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत उनमें सेंस बचा है, जो कॉन्शियसनेस बचा है, उससे उनको ये लगता है कि हाँ अभी मुझे फिर से उसी प्लानिंग पे काम करना है, यानी कि मुझे नीचे जैसे ही उनको टाइल टच हुए अपने पैरों के नीचे, जैसे ही उनको लगा कि हाँ मैंने जो बॉटम है वो टच किया है, मुझे दोबारा से जंप करके ऊपर आना है, एंड जैसे ही उन्होंने फील किया कि अब वो बॉटम पे पहुंच गए हैं, उनके जो टोज़ हैं यानी पैर हैं उनके जो बॉटम तक यानी कि उस टाइल को छूने लगे हैं, उन्होंने फिर से उसको ट्राई किया और जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। एवरीथिंग यहाँ पे एवरीथिंग का मतलब है द लेफ्ट ओवर करेज, उनकी जितनी भी करेज बची थी, जितनी भी उनमें करेज बची थी, थोड़ी बहुत जो हिम्मत उनमें बची थी, वो उन्होंने एकत्रित किया, उसको इकट्ठा किया और दोबारा से तीसरी बार उन्होंने जंप किया, यानी कि यहाँ पे जंप करने की उन्होंने कोशिश किया दूसरी बार। देन बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, आई लुक्ड फॉर द रोप्स, लेडर, वाटर विंग्स, नथिंग बट द वाटर, अ मास ऑफ द येलो वाटर हेल्ड मी। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, मेक नो डिफरेंस मतलब उन्होंने जो जंप किया था उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो पानी था वो अभी भी मेरे चारों तरफ था, मैं बार बार रस्सी के लिए, किसी सीढ़ी के लिए या वाटर विंग्स सभी चीज़ों के लिए ढूंढ रहा था कि कुछ तो मेरे हाथ में आ जाए, बट कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी ही मेरे हाथ में था, एंड चारों तरफ एक येलो कलर के वाटर ने मुझे चारों ओर से घेर रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, लाइक a great change of the electricity. I'm so sorry, like a great charge of the electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. अब क्या हुआ? चारों तरफ पानी दिख रहा था उनको, और अब वो जो डर था उनका वो धीरे 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 बहुत गहरा होता जा रहा था। ट्रैम्बलिंग इज कॉल्ड शेक ड्यू टू मूव वीकनेस या फेयर की वजह से, तो यहाँ पे बोल सकते हो ट्रैम्बलिंग ड्यू टू वीकनेस और फेयर, यानी कि डर की वजह से जब आप हिलने लगते हो या वीकनेस की वजह से, दैट इज कॉल्ड ट्रैम्बलिंग। तो बता रहे हैं जो स्टार्क, जो सीवियर टेरर था, जो इतना बड़ा डर था, वो और ज़्यादा डीप होता जा रहा था, मेरे ऊपर अपना कंट्रोल ज़्यादा करता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसने मुझे अब चारों तरफ से पकड़ के रखा है। मतलब वो कुछ भी कर रहे थे, उनकी सारी स्ट्रैटेजीज फेल हो रही थी, धीरे 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 उनकी पूरी जो बॉडी है उसके ग्रिप में जा रही थी। तो ऐसा लग रहा था कोई बहुत तेजी के साथ जो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी फोर्स है उसने उनको जकड़ के रखा हुआ है। एंड आई शूक एंड ट्रैम्बल्ड विद फ्राइट, फ्राइट इज कॉल्ड फियर, वो डर की वजह से वो पूरा हिल रहे थे, कांप रहे थे, उनके जो हाथ थे वो मूव नहीं कर रहे थे, उनके जो पैर थे वो मूव नहीं कर रहे थे, वो चिल्लाना चाहते थे, वो अपनी मदर को बुलाना चाहते थे, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। जब हम बहुत ज़्यादा डर में होते हैं तो हमको सिर्फ एक पर्सन की याद आती है, हमारी मदर। तो वो भी वही कर रहे थे, वो बुलाना चाह रहे थे अपनी मदर को, बट कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ही वॉज नॉट एबल टू जस्ट शो द कंट्रोल ऑन हिज ओन बॉडी। And then, strangely, there was a light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. तभी उनको लगा, एक अचानक से strangely मतलब एक अजीब सा लाइट उनको दिखाई दिया पानी के अंदर, एंड उनको ऐसा लगा जैसे कि वो पानी के बाहर आ रहे हैं। और awful is called dangerous, जो बहुत खतरनाक जो पानी था उससे वो बाहर आ रहे हैं। किसी मतलब ये उनको सिर्फ महसूस हो रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू फील इट वेरी क्लियरली। एटलीस्ट माई आईज वर, यहाँ उनको लगा कि हाँ मेरी आंखें तो अब बाहर आ गई हैं, मेरी नोज भी लगभग बाहर थी।
देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। उनको ऐसा लगा कि हाँ वो सरफेस पे आ गए, लेकिन इसके बाद भी सरफेस पे वो नहीं आए थे। ऐसा क्या हुआ था, जैसे कि बहुत ज़्यादा जब आप डीप जाते हो, जब मैंने आपको बताया जहाँ तक पानी की रे नहीं पहुँच सकती, जैसे आप देखो इस लेवल तक, यहाँ इस लेवल तक अगर हम देखें तो यहाँ पे यहाँ तक पानी में रोशनी है, फिर थोड़ा नीचे जाओगे यहाँ तक पानी में कम रोशनी है, बट जैसे जैसे आप और नीचे जा रहे हो पानी डार्क होता जा रहा है। तो व्हाट वाज हैपनिंग विद हिम, ही वाज गोइंग फ्रॉम दिस लेवल, वो इस लेवल से ऊपर गए, फिर यहाँ से गए ऊपर, फिर यहाँ से गए, फिर ऊपर गए। तो जैसे जैसे रोशनी आना शुरू हुई उनको क्या लगा कि वो सरफेस पे आ गए हैं, उनको लगा उनकी नाक बाहर आ गई है, उनका आइज बाहर आ गया है। बट एट द टाइम जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचने वाले थे, नथिंग वाज देयर, कोई था ही नहीं, कुछ होल्ड करने के लिए नहीं था। तो अगेन ही वाज गोइंग, और इस टाइम वो किस बार जा रहे थे, थर्ड टाइम, तीसरी बार वो बॉटम की तरफ जा रहे थे। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। सक्ड इज कॉल्ड टू टेक समथिंग और टू सिप, अंदर सक करना। वो क्या सक करने लगे फिर से जब वो नीचे जा रहे थे, सक फॉर एयर, मतलब वो एयर यानी कि ब्रीथ करना चाह रहे थे। देयर वाज नो एयर इन द वाटर, तो वो पानी उनको सिर्फ और सिर्फ जब भी वो सक करने की कोशिश करते थे तो क्या जाता था, पानी, सिर्फ पानी, मतलब वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पानी अंदर जा रहा था। और क्या पानी, येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, मतलब अभी वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगेन एंड अगेन अगेन ही वाज गोइंग डाउन, वो फिर से डार्कर पार्ट की तरफ जा रहे थे, यानी कि थर्ड टाइम वो नीचे जा रहे थे। Then all effort ceased. I relaxed, even my legs felt limp, and the blackness swept over my brain. I wiped out fear and wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. Ceased is called stop or end. टेंडर इज कॉल्ड सॉफ्ट एंड लविंग, एंड लिम्प इज कॉल्ड लाइफलेस। अब वो क्या बता रहे हैं, जब वो नीचे की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स छोड़ दिए। एफर्ट्स इज कॉल्ड, उन्होंने कुछ भी नहीं, अब समझ में आ रहा था अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, उनके शरीर में जान ही नहीं बची थी। तो अब जब वो नीचे जा रहे थे उनके सारे जितने भी प्लान थे, स्ट्रेटजीज थी, हार्डवर्क था, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब उनको अच्छा लग रहा था, मतलब अब वो रिलैक्स कर रहे थे, उन्होंने उनके दिमाग में कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही थी क्योंकि उनकी बॉडी ही नहीं चल रही थी। उनके जो लेग्स थे वो लिम्प हो गए थे, लिम्प इज कॉल्ड, उनको लग रहा था उनमें जान ही नहीं बची है। एंड ऐसा लग रहा था जो टेरर था, जो डर था, अब वो चला गया है। वाइप्ड आउट इज कॉल्ड, चला गया है। देखो, जब आप किसी चीज़ को नहीं करते हो, जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, आपको वो चीज़ डराती रहेगी। बट अब एक बार जब आपने उसको करने की कोशिश किया, ठीक है, वो जो डर था वो आप डर महसूस कर रहे हो, लेकिन जितनी ज़्यादा देर आप उस चीज़ के, उस सिचुएशन के, उस कंडीशन के साथ रहोगे, धीरे 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 उस डर की भी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। वही इनके साथ हो रहा था, काफ़ी देर से वो पानी में थे, सारी स्ट्रेटजीज वो कर चुके थे, बहुत ज़्यादा जो भी होना था वो हो चुका था, उनको बस ये लग रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ। इसीलिए अब जो डर था, जो स्टार्क डर था, जो सीवियर डर उनको लग रहा था, अब वो चला गया था। कोई भी दुख नहीं था उनको, किसी भी तरह का परेशानी, दुख, कोई भी पेन नहीं था, सब कुछ बहुत पीसफुल लग रहा था। एंड उनको ऐसा लग रहा था आप किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी बॉडी में पेन आप जब तक सेंस करोगे, ठीक है, आपको चोट लगी, जब तक आपको दर्द होगा तभी तक तो आप चिल्ला सकते हो। जब एक तरह से वो उसकी इंटेंसिटी, उसका लेवल जब बिल्कुल आउट ऑफ लिमिट चला जाएगा, आपको सेंस होना ही बंद हो जाएगा, देन व्हाट इज देयर, ओनली पीस इज देयर, आपको महसूस ही नहीं होगा दर्द। देन दिस इज नाइस to be drowsy, to go to sleep. No need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in a space, tender arms around me, tender arm like mothers. Now I must go to sleep. अब उनकी जो फीलिंग थी वो बिल्कुल बदल गई है। ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इफ़ द क्वेश्चन कम लाइक दिस ना, जस्ट ट्राई टू गो एंड राइट दीज लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट। वो कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जब वो नीचे जा रहे थे थर्ड टाइम, उनको कोई भी डर नहीं लग रहा था, अब उनको अच्छा लग रहा था। यहाँ से जो यहाँ तक का जो है, ये ट्राई करना आप लोग, इसको लिखने की कोशिश करना आंसर में अगर आता है तो। ड्राउजी इज कॉल्ड, नींद आना, ठीक है, एकदम अनकॉन्शियस होना, उनको अच्छा लग रहा था वैसा, और ऐसा लग रहा था कि अब वो सोने वाले हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है कोई एफर्ट करने की, जंप करने की, वो थक गए हैं जंप करते हुए, कुछ भी नहीं हो रहा है। कैरीड अवे, वो नीचे बहुत जेंटली नीचे जा रहे हैं, कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं अब वो। और फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, फ्लोट अलॉन्ग इज कॉल्ड, तैरना, जो भी स्पेस है पानी का वहाँ पे वो तैर रहे हैं। टेंडर आर्म्स, ऐसा लग रहा है, टेंडर इज कॉल्ड डेलिकेट, उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने
में जो डेलिकेट सॉफ्ट से आर्म हैं, बाहें हैं, वो उनकी तरफ चारों तरफ आ गई हैं, और वो किसके आर्म लग रहे थे उनको? अपनी मदर के। ऐसा लग रहा था वो अपनी मदर के आर्म्स में है, सॉफ्ट आर्म्स में है। एंड नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, उनको ऐसा लग रहा था कि अब मैं सो जाऊंगा। सो जाऊंगा मतलब अब मैं अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहा हूँ। I crossed to oblivion and curtain of life fell. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me was saying, but I was only fooling. Someone said that the kid nearly died, but all right now, let's carry him to the locker room. Oblivion is called the state of being unaware of something या cross the limit of something. Unaware को आप बोल सकते हो, limit भी बोल सकते हो कि limit cross कर जाना. Curtain of life fell, another expression that is called life came to an end. अब उनको क्या लगा कि ये जो जो थोड़ा बहुत भी सेंसेशन हो रहा था वो स्टेज भी उन्होंने क्रॉस कर ली है। ऐसा लग रहा था कि जो स्टेज आनी चाहिए कि भाई हाँ यहाँ पे लाइफ और डेथ का ये जो एक तरह से मान लो बॉर्डर है वो उन्होंने क्रॉस कर लिया, तो उनको ये लग रहा था कि अब वो मर गए हैं। इस तरह से बिल्कुल लाइफ ऑफ कर्टेन फेल एज इफ ही डाइड। बट नेक्स्ट मोमेंट उनको क्या याद आया कि भाई वो दूसरी ही मोमेंट उनको लगा कि वो पुल पर लेटे हुए हैं स्टमल के बल और कोई उनके पेट से पानी निकाल रहा है। एंड द चाप इज कॉल्ड द बॉय, जो यंग बॉय था उनको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो क्या बोल रहा था? आई वॉज जस्ट फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो किसी ने कहा, समवन सेड, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ सुनाई दे रहा था कि किसी ने कहा कि द किड वॉज नियरली डाइड, कि जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो मरने वाला था। तुम्हारा तो मजाक करना हुआ, बट उसकी तो ज़िंदगी जाने वाली थी, उसकी जान पे आ गई थी। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि नाउ इट्स ऑल राइट, अब वो ठीक है। और अब वो लॉकर रूम की तरफ जा रहे थे। लॉकर रूम मीन्स स्मॉल लॉकर्स दैट आर प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स टू कीप देयर बिलोंगिंग्स, कपड़े वगैरह रखने के लिए। तो वो वहाँ जा रहे थे उसको लॉकर रूम में लेकर। Now, several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and carried when I lay on my bed. I couldn't eat that night for days. A haunting fear was there in my heart. The slightest exertion upsets me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. Wobbly is called unsteady, balance नहीं, uncontrolled बोल सकते हो. Shook is called past tense of shake, moment. Exertion is called a lot of effort, and trembling is called to shake due to weakness. तो अब उनको याद है बहुत घंटों बाद वो घर पहुँचे एंड वो बहुत वीक थे, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे, अभी भी वो काँप रहे थे। एंड वो जिस तरह से मूव कर रहे थे एंड क्राइड, वो रो रहे थे व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब वो लेटे हुए थे वो रो रहे थे और बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे डर की वजह से। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया उस नाइट, बहुत ज़्यादा दिनों तक। हॉन्ट इज कॉल्ड डराना, बहुत ज़्यादा दिनों तक वो जो फेयर था, वाटर फेयर, वो उनके दिल में था, हमेशा उनको डर लगता रहता था। थोड़ा सा भी एक्सर्शन, स्लाइटेस्ट इज कॉल्ड, थोड़ा सा भी एक्सर्शन इज कॉल्ड हार्ड वर्क। थोड़ा सा भी जो हार्ड वर्क अगर होता था वो उनको अपसेट कर देता था, यानी कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना खाना, ना पीना, ना कोई काम करना। एंड दैट मेक मी वूबली इन माई नीज। सो कोई भी अगर थोड़ा सा इस तरह का काम आ जाता था तो ही स्टार्टेड फीलिंग अनस्टेडी, ऐसा लगता था उनके पैरों में जान नहीं है, मतलब वही चीज़ वापस आ जाती थी, वो टेरर उनके वापस आ जाता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और उनको ऐसा लगता था कि वो कुछ बीमार हैं, यानी कि उनको थोड़ा सा अनईजी फील होना शुरू हो गया इस इंसिडेंट के बाद। ही वॉज नॉट क्वाइट वेल। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. उसके बाद वो कभी भी पुल पर वापस नहीं गए एंड हमेशा अवॉइड कर देते। अगर कोई जा रहा है कि चलो चलते हैं या देखने, बट हमेशा इस तरह की चीज़ों को वो अवॉइड करने लगे। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river of bathing the warm lake to the got rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. Seized is called take hold of suddenly. Cascades mean waterfall. Waterfall आप बोल सकते हो झरना। तो अब ऐसा तो संभव नहीं हो सकता कि वे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे कि पानी में, वाटर बॉडीज़ में जाना वो बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन वो अब अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब भी वो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में जाते थे तो उनको कैसा लगता था।
थोड़े टाइम बाद उनको झरने के बारे में पता चला एंड वो उसके पास जाना चाहते थे। मतलब वो बता रहे हैं कि अलग अलग वाटर बॉडीज़ यानी कि लेक, रिवर और स्विमिंग पूल के बारे में उनको पता था। थोड़े टाइम के बाद उन्हें झरने के बारे में पता चला, वो उसमें जाना चाहते थे। एंड जब भी वो ऐसा करते थे, आई वॉज वेडिंग द टाइटन। वेडिंग इज कॉल्ड मीन्स ये कैस्केड है, वेडिंग द टाइटन ये इस तरह से। दिस इज कॉल्ड वेडिंग एक्टिविटी व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द वाटर। जब आप पानी के अंदर चलते हो, थोड़ा सा शैलो वाटर होता है उसमें चलते हो, वो करना चाहते थे वो वहाँ पर। बट आई वॉज वेडिंग द टाइटन ऑफ बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक इन द गॉट रॉक्स। अलग अलग जगहों के नाम बताए हैं, यहाँ पे टाइटन और बम्पिंग रिवर है। यहाँ पर वो क्या करना चाहते थे, वेडिंग एक्टिविटी। वेडिंग एक्टिविटी मतलब वो इस पानी में जाना चाहते थे एंड बाथिंग और वार्म लेक में वो नहाना चाहते थे। तो ये जितनी भी यहाँ पे नेम्स हैं ये आपको याद रखने हैं, इनको अंडरलाइन करेंगे आप टेक्स्ट में। वो वार्म लेक में नहाना चाहते थे, टाइटन नदी में चलना चाहते थे, और जो वार्म लेक थी वो गॉट रॉक्स से निकलती थी, यानी कि उसका जो ओरिजिन था वो गॉट रॉक्स था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। जिसने पुल में उनको जो डर लगा था जब वो फेंके गए थे 10-11 साल में जब उनको फेंका था, वही डर उनका वापस आ जाता था। मतलब कभी भी वो किसी भी वाटर एक्टिविटी में जाते थे उनको दोबारा से डर लगने लगता था। Now, it would take possession of me completely. My legs will become paralyzed. Icy horror would grab my heart. This handicap stayed with me as the years rolled by. Possession is called the state of owning something. Icy horror, the cold water that author felt deeply. And handicap, a situation that makes a progress difficult. यहाँ पे handicap का क्या मतलब है? एक situation, एक इस तरह की स्थिति जिसने आपकी progress को, आपकी success को difficult कर दिया है to reach over there. तो अब वो बता रहे हैं कि जब भी वो इस वाटर में जाते थे ऐसा लगता था उनके कंट्रोल, पोजेशन इज कॉल्ड, उनका कंट्रोल है वो पूरी तरह से चला गया है, पानी ने उनको अपने अंडर में कंट्रोल में कर लिया है। उनके जो लेग्स थे बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते थे और जो पुराना डर था एक पानी का, दोबारा से वो उनके हार्ट को अपनी ग्रिप में ले लेता था। वो उनको ऐसा लगता था कि वो जितनी भी प्रोग्रेस करने की कोशिश करें, इसको ओवरकम करने की कोशिश करते थे, बट वो अगेन एंड अगेन उनके पास आ जाता था। उसने उनकी प्रोग्रेस को डिफ़िकल्ट कर दिया था। मतलब कोई भी वो नया एडवेंचर करते थे वहाँ पे पानी का डर वापस आ जाता था, जिससे कि वो आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस करने लगे। जैसे जैसे ये ईयर्स बढ़ते गए ये चीज़ भी उनके साथ रही। मतलब वो बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन जो उनका डर था वो अभी भी उनके हार्ट में था। हम बोल सकते हैं जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनका डर भी बढ़ा हो रहा था। Now here, in canons of man lakes, fishing for the landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in the Oregon. अब यहाँ पे अलग अलग नदियों के नाम आए हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो वो फैक्चुअल पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें you have to learn the name of these places and exactly like that. यहाँ पे अलग अलग रिवर्स, लेक और वाटर बॉडीज़ के नेम्स आए हैं, जैसे कि वो बता रहे हैं कैनॉ इज कॉल्ड बोट्स एंड डिप्राइव इज कॉल्ड टू टेक अवे। तो वो अपनी बोट में बैठकर जब भी फिशिंग के लिए जाते थे, लैंडलॉक्ड सैल्मन मैंने आपको बताया था, दीज आर फिश। तो सैल्मन फिश की फिशिंग के लिए जब वो मेन लेक में जाते थे, ये नाम है, एक लेक है मेन लेक, वहाँ पे सैल्मन फिश की फिशिंग के लिए जब वो जाते थे। न्यू हैम्पशायर जाते थे जब वो बैस इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ द फिश, और न्यू हैम्पशायर ये भी एक नेम है, यहाँ पर जाते थे वो। ट्राउट फिशिंग, ट्राउट भी एक फ़िश का नाम है, उसकी फ़िशिंग के लिए जब वो डेशूट्स और मेटोलियस इन ऑर्गन, डेशूट एंड मेटोलियस दे बोथ आर द रिवर, ये भी रिवर हैं और ये कहाँ पे हैं, ये है ऑरेगन। ऑरेगन इज़ द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पर ये दोनों रिवर हैं, और वहाँ पे वो बैस नाम के फ़िश की फ़िशिंग के लिए जाते थे। फिशिंग फॉर सैल्मन, अगेन सैल्मन की फ़िशिंग के लिए जब वो कोलंबिया रिवर जाते थे, एंड द बम्पिंग लेक इन द कैस्केड, और जो कैस्केड में जाते थे ऑफ द बम्पिंग लेक, यानी कि जो झरना था उसकी जो नीचे लेक आती थी बम्पिंग लेक, ये भी एक नेम है। ये सारे ही नेम आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। जहाँ पर भी वो जाते थे, वेन एवर आई वेंट और वेयर एवर, जहाँ कहीं भी वो जाते थे उनका जो डर था उनका पीछा करता था, हमेशा उनके पीछे आता था जब वाटर ऑफ फेयर, एंड इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। वो बता रहे हैं कि वो जहाँ कहीं भी किसी भी लेक में किसी भी एक्टिविटी में जाते थे, उनका सारा जो डर था वो हमेशा उनको फॉलो करता था और उनका सारा इन्जॉयमेंट वहीं ख़त्म हो जाता था, या इस डर ने उनका सारा इन्जॉयमेंट
ले लिया था। जो इन्जॉय वो कैनोइंग, बोटिंग या स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग में एक्सपीरियंस करना चाहते थे, वो सारा इन्जॉय उनका ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग लेक्स, रिवर्स के और कैस्केड के नेम बताए हैं जहाँ पे वो अलग अलग वाटर एक्टिविटीज़ के लिए जाते थे, बट वो कोई भी वाटर एक्टिविटी इन्जॉय नहीं कर पाते थे। जो उनका पुराना वाटर फेयर था वो हमेशा वापस आ जाता था। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. अब उन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चल सकता, because he was fond of doing water activities. अब आपको स्विमिंग करना नहीं आता, उससे डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी एक्टिविटी ही छोड़ दोगे। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि ठीक है, चलो अब मैं एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर रखूंगा जो मुझे स्विमिंग सिखाएगा। और उन्होंने 5 दिन में, एक वीक में 5 दिन मीन्स 5 days a week ही स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग ईच आवर अ डे एंड द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। तो ये आप देख सकते हो, इंस्ट्रक्टर जो स्विमिंग करने सिखा रहे हैं, मतलब अभी वो उन्होंने क्या किया, ही हैड नॉट जॉइंड एनी ऑफ द पुल। उन्होंने किसी पुल में ज्वाइनिंग नहीं किया, किसी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने पर्सनल इंस्ट्रक्टर रखा जो उनको सिखाएगा। उस इंस्ट्रक्टर ने उनके साथ एक बेल्ट बांधा। द वन साइड ऑफ दैट बेल्ट वाज टाइड ऑन द हियर ऑन द वेस्ट ऑफ द राइटर एंड वन साइड वाज हेल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर. Now here a rope attached to the belt ran through the pulley that ran on an overhead cable, and he had onto the end of the rope, and we went back and forth across the pool, hour and hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Cable is called a thick cable, और thick आप rope भी बोल सकते हो, मोटी सी एक रस्सी, and pulley is called a piece of equipment. तो we can say this is पुली। ये इस तरह का अब आप देख सकते हो, ये एक लीवर है। इस लीवर में ये स्पेस है जहाँ से एक साइड से ये रोप का हिस्सा निकल के, और यहाँ पे एक व्हील है जिससे होते हुए दूसरी साइड से यहाँ पे आ रहा है। तो वी कैन से द वन साइड वाज हेल्ड बाय इंस्ट्रक्टर, एक तरफ इंस्ट्रक्टर ने उसको पकड़ा हुआ था, एंड दिस साइड वाज हियर टाइट ऑन द वेस्ट ऑफ द राइटर। दूसरा जो रोप का सिरा था वो उससे बंधा हुआ था। तो हियर, यहाँ पर जो केबल थी, दैट इज ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब व्हेन यू आर डूइंग स्विमिंग, जब आप स्विमिंग कर रहे हो तो वो जो रोप है वो आपके ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर इज आउट ऑफ द स्विमिंग पूल, वो बाहर खड़ा है। तो यहाँ पे ही हेल्ड टू द एंड ऑफ द रोप, वो पकड़ते थे दूसरा सिरा, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उस पुल के वेंट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे स्विमिंग करना शुरू किया। मतलब अगर जैसे आप पुल इंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक साइड पर खड़ा हुआ है और आप धीरे धीरे स्विमिंग करने के लिए आगे जा रहे हो, तो जितना आगे आप जाओगे, एक केबल है जो उसने हेल्ड किया हुआ है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू फील और एक्सपीरियंस एनी मिस एडवेंचर। कुछ भी अगर ऐसा होता है तो इंस्ट्रक्टर केबल को खींच लेगा। तो वो आगे पीछे इस तरह से स्विमिंग सीख रहे थे, आवर एंड आवर, मतलब डे बाय डे, दिनों दिन, घंटे बाय घंटे और वीक बाय वीक उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस किया। एंड उन्होंने जो पुल के अक्रॉस है, अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, जब भी कभी भी हमेशा जाते थे एक तरफ से दूसरी तरफ, कभी ना कभी उनको वो जो फेयर था वो उनको डराने लगता था। मतलब कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता था कि उनका जो पुराना चाइल्डहुड फेयर है वो दोबारा से रिवाइव हो गया है। तो अभी हमने देखा कि उन्होंने अपने लिए एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर रखा है, और वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली ही स्टार्टेड लर्निंग द स्विमिंग। Here, each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. यहाँ पर बता रहे हैं कि कभी कभी इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा रिलैक्स कर देता था। रिलैक्स इज कॉल्ड, थोड़ा सा अगर उन्होंने लूज किया, अगर ऐसा लगा कि भाई हाँ कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, और जब भी वो कभी पानी के अंदर जाते थे, पानी के अंदर से मतलब जब भी वो स्विमिंग के लिए जाते थे, हमेशा उनका पुराना जो डर था वो वापस आ जाता था। उनको ऐसा लगता था कि उनके पैर फ्रीज हो गए हैं एंड वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, फ्रोजन हो गए हैं, जम गए हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज
and inhale. I repeated the exercise hundreds of the time. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under the water. Slack is called to reduce, shade is called to remove, and panic means fear and seized is called gripped. अब वो क्या बता रहे हैं कि धीरे धीरे लगभग 3 महीने हो गए थे उनको, 3 महीने तक उन्होंने किस चीज़ की प्रैक्टिस किया था, गोइंग फोर्थ एंड बैक, आगे पीछे जाने का जो था वो एक्सरसाइज उन्होंने कब तक किया, लगभग 3 महीने तक किया। और उसके बाद उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको इनहेल और एक्सेल सिखाया। अब इनहेल यू कैन नॉट डू इनसाइड द वाटर, वहाँ तो एयर नहीं होता है, अगर इनहेल करोगे तो पानी ही जाएगा। तो उन्होंने सिखाया कि किस तरह से यू हैव टू कम अप एंड इनहेल एंड अगेन व्हेन यू आर गोइंग डाउन यू हैव टू एक्सेल। आपको किस तरह से काबू करना है, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज दैट ही टॉट हिम। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज। उन्होंने अच्छे से बहुत डिटर्मिनेशन के साथ ही वॉज लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग। 100 ऑफ द टाइम उन्होंने इस इनहेल और एक्सेल की प्रैक्टिस किया और बिट बाय बिट धीरे धीरे करके छोटा छोटा पॉइंट करके क्या हट रहा था, शेड इज कॉल्ड रिमूव्ड। क्या रिमूव हो रहा था, धीरे धीरे जो डर था, जो पानी का डर था, जो उनको पॉज कर देता था, सीज कर देता, वो धीरे धीरे उनके मन से, उनके हेड से जा रहा था जब भी वो पानी के अंदर जाते थे। यानी कि अब एक्सरसाइज, अब ऐसा नहीं कि आप पानी के सरफेस पे रहोगे, अंदर जाना भी सिखाएंगे। तो जब वो इनहेल और एक्सेल सीख रहे थे, जब वो नीचे जा रहे थे, धीरे 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 दिनों दिन जैसे जैसे वो आगे सीखते जा रहे थे, उनका जो डर था वो धीरे धीरे बिट बाय बिट कम होता जा रहा था। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks, I did just that. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed, and finally, I could command them. Command is called to order them. अभी उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरे पैर पकड़े और उसके बाद at the side of pool and held me किक विद माई लैग्स। उन्होंने कहा कि चलो अब तुमको किक करना है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन यू आर अंडर द वाटर यू हैव टू गैदर योर करेज, अदरवाइज वाटर स्टार्टेड शोइंग द कंट्रोल ऑन यू। तो इस तरह से उन्होंने सिखाया कि जैसे उन्होंने उनके पैरों को पकड़ के रखा है और फिर उन्होंने कहा कि नाउ यू स्टार्ट किक विद माई लैग्स, यानी कि अब तुमको पैडल करना है, क्योंकि ये फोर्स है। इस तरह से वो क्या सिखा रहे हैं कि जब आपके लेग किसी फोर्स के अंदर है, पानी के अंदर पानी का फोर्स होता है, वहाँ पे जैसे कि जब वो नीचे जा रहे थे उनको अपने लेग कैसे महसूस हो रहे थे, लिम्प, लाइफलेस हो गए थे। तो वही उनको सिखा रहे थे कि जब पानी अपना फोर्स बढ़ाना शुरू करता है, उसमें भी, उस कंडीशन में भी हाउ कैन यू किक योर लेग्स। तो उन्होंने फोर्स के तौर पर उनके पैरों को पकड़ा और फिर उनको किक कराना सिखाया, और ये एक्सरसाइज भी उन्होंने काफ़ी वीक्स तक की। उसके बाद पहले तो उनके लेग्स ने रिफ्यूज किया कि ऐसे वो कैसे वर्क कर सकते हैं, इफ समबडी इज होल्डिंग योर लेग हाउ कैन यू किक। बट धीरे 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 उन्होंने ये सीखा, ग्रेजुअली इज कॉल्ड स्लोली, उन्होंने रिलैक्स किया एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। फाइनली कमांड दैम इज कॉल्ड फाइनली। प्रैक्टिस के साथ साथ वो उनको अपने लेग्स पर कंट्रोल करना आ गया। अभी क्या है, अगर कोई पकड़ लेगा, आपने पकड़े हुए हैं, होल्ड किया हुआ है, पानी में हो, पानी की फोर्स ने आपके पैरों को जकड़ा हुआ है, यानी कि किसी और का कंट्रोल है, आपको प्रैक्टिस के थ्रू उस कंट्रोल को अपने हाथ में लेना है। वही उन्होंने किया, धीरे धीरे उनका जो कंट्रोल था अपने लेग्स को कमांड करने का, ऑर्डर करने का, मतलब जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही उसको लेग्स को मूव करना होगा, वो उनको धीरे धीरे आ गया। 10 Piece by piece, he built a swimmer. And when he perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Crawl stroke, I did, and the instructor was finished. Integrated is called unified or united, इकट्ठा. Dive is called to jump in the water, डुबकी लगाना। तो अभी धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके उन्होंने मुझे एक अच्छा स्विमर बना दिया। और जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें, यानी आगे पीछे जाना, इनहेल एक्सेल करना, वाटर, हाउ टू किक योर लेग और मूव योर लेग, ये सारी चीज़ों को फिर उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि आप सब साथ साथ करो। पहले वो अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे थे बिट बाय बिट, अब वो ये सारी चीज़ों की साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। और उन्होंने 1 अक्टूबर को, जो मैंने बताया था 1 अक्टूबर को उन्होंने शुरू किया था, एंड अभी क्या चल रहा है, अप्रैल। तो अप्रैल के मंथ तक आते आते यानी कि लगभग आप बोल सकते हो 7 महीने, 7 मंथ्स हो गए थे उनको सीखते हुए। अब उन्होंने कहा नाउ यू आर अ परफेक्ट स्विमर एंड नाउ यू कैन डाइव, यू कैन स्विम। अब तुम पानी के अंदर जा सकते हो, स्विम कर सकते हो, पूरे पुल कहीं भी, मीन्स कोई सी भी वाटर बॉडी है, तुम उसको क्राउल स्ट्रोक में यू कैन गो एंड स्विम। एंड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। फिनिश्ड इज कॉल्ड, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड का मतलब है द जॉब ऑफ द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, यानी कि अब वो इंस्ट्रक्टर के अंडर काम नहीं कर रहे थे।
Now, but I was not finished. I still wondered if I would terror strike in. When I was alone in the pool, I tried it. I swam the length up and down. Tiny wastage of the old terror would return. But now I could frown and say to that terror, trying to scare me, well, here is to you. Look, and off I'd go and to another length of the pool. Tiny wastage is called the small remains, छोटे छोटे टुकड़े या अंश. And frown is called to show your anger. Frown is called when there is lines between your eyebrows. आप जब angry होते हैं तो reaction होते हैं ना वो. सो अब ये इंस्ट्रक्टर ने तो बोल दिया था, इंस्ट्रक्टर का जॉब फिनिश हो गया था, बट द राइटर वॉज नॉट सेटिस्फाइड. उसने कहा कि नहीं, अभी मेरा जॉब फिनिश नहीं हुआ है. वाई? बिकॉज टिल नाउ ही वॉज वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर. बट अब वो अपने आप अलोन अकेले उस पुल पे स्विमिंग करना चाहते थे. उन्होंने वो कोशिश भी किया एंड उन्होंने स्वैम किया द लेंथ अप एंड डाउन. उन्होंने पूरी लेंथ यानी कि स्विमिंग पूल में अकेले स्विमिंग करना शुरू किया. बट कभी कभी ऐसा लगता था जिससे थोड़ा सा पार्ट था जो उनका ओल्ड टेरर था वो वापस आ गया है. बट नाउ ही वॉज हैविंग द करेज, कॉन्फिडेंस टू से टू दैट फियर. अब उनमें हिम्मत आ गई थी उस फेयर को, उस डर को सामना करने की और उसको अपना एंग्री फेस दिखाने की कि व्हाट यू कैन सी ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराना चाहते हो. वेल, हेयर इज टू यू. हाँ ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ एंड आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल. कैसे डराओगे? तो मुझे डरा के दिखाओ, क्योंकि मैं फिर से जा रहा हूँ स्विमिंग करने और पुल के उस तरफ. मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे स्विमिंग जैसे आपने धीरे धीरे किया तो ग्रेजुअल है, तो यहाँ से जब आप स्विमिंग कर रहे हो ठीक है, बट एज यू आर गोइंग टुवर्ड्स द डीपर साइड, जैसे जैसे आप शैलो की तरफ से डीपर जाते हो तब उनका थोड़ा थोड़ा सा डर वापस आ जाता था, लेकिन अब उसमें उनमें कॉन्फिडेंस आ गया था. वाई? बिकॉज ही वॉज अ ट्रेन्ड स्विमर. उनको सारी ही टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी सब आता था उनको. तो धीरे 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 वो जो दर्द था वो खत्म होने लगा था. मीन्स नाउ ही वॉज अ ट्रेन्ड स्विमर. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यानी कि अप्रैल तक. तो उन्होंने अक्टूबर के बाद अप्रैल तक उन्होंने कहा किससे सीखा? इंस्ट्रक्टर से सीखा. और अब क्या आ गया था? जुलाई. ठीक है, लगभग 3 महीने और, तो हम बोल सकते हैं 10 महीने. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हेल्ड देम. सो आई वेंट टू लेक वेंटफोर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke. Only once did the terror रिटर्न. अब उन्होंने जुलाई तक अपने आप अकेले प्रैक्टिस किया. लगभग 3 महीने उन्होंने अपने अकेले प्रैक्टिस किया, बट अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं थे. उनको क्या लग रहा था कि आई एम ट्रेन्ड स्विमर टू हु कैन स्विम ओनली इन द स्विमिंग पूल. बट अब वो वाटर बॉडीज़ में स्विमिंग करना चाहते थे. तो इसके लिए वो कहाँ गए? लेक वेंटफोर्थ में गए. कौन सी झील पर गए? वो लेक वेंटफोर्थ में गए जो न्यू हैम्पशायर में है. डाइव्ड ऑफ अ डॉक, उन्होंने वहाँ पर डाइव ऑफ किया. कहाँ पे? एट ट्रिक्स आइलैंड. ट्रिक्स आइलैंड से लेकर और 2 मील यानी कि 2 मील तक था स्टैम्प एक्ट आइलैंड. यानी कि यहाँ से ट्रिक्स से यानी कि एक आइलैंड से और दूसरे आइलैंड तक. तो ये वाला हमारा कौन सा है? दिस इज ट्रिक्स आइलैंड एंड दिस इज स्टैम्प एक्ट आइलैंड. और इसकी जो ये बीच की दूरी है वो कितनी है? 2 माइल्स. तो उन्होंने डाइव किया यानी कि यहाँ से डुबकी छलांग लगाया उन्होंने, और उसके बाद 2 मील जो स्टैम्प एक्ट था वहाँ तक उन्होंने स्विम किया. और किस तरह से उन्होंने स्विम किया? अलग अलग जो स्ट्रोक होते हैं, दैट वाज द क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड देन बैक स्ट्रोक. इसमें उन्होंने स्विम किया. अलग अलग स्ट्रोक्स में उन्होंने स्विम किया. ये सारे जितने भी स्ट्रोक होते हैं ये व्हेन यू आर प्रॉपरली अ लर्न्ड स्विमर तब आपको सिखाए जाते हैं. तो आप देख सकते हो दिस इज द फ्रंट क्रॉल. सीधे होकर किस तरह से तैरा जाता है? बिट बाय बिट. फर्स्ट यू हैव टू डू दिस लाइक दिस. किस तरह से आपको बॉडी का पोस्चर करना है, कैसे करना है. देन ब्रेस्ट स्ट्रोक इज जस्ट लाइक दैट. आपने देखा होगा इफ़ यू आर वॉचिंग, जिसमें कि दोनों हाथ के साथ तैरा जाता है एक साथ. इसमें आप 1 by 1 आप हैंड यूज कर रहे हो क्रॉल में, जिसको रेंगना बोलते हैं. ब्रेस्ट स्ट्रोक में यू आर जस्ट डूइंग with both of the hand at the same time, forth and back and div and then आगे जाना. तो ये is breast stroke. Side stroke is called when you are swimming at the side. हर तरह की स्ट्रोक हर तरह की कंडीशन में सिखाई जाती है कि किस तरह की कंडीशन हो, किस तरह का वाटर बॉडी हो. आपको कभी बच के जाना हो तो आपको साइड स्ट्रोक भी आना चाहिए. तो दिस इज द मूवमेंट. ठीक है, इस तरह के साइड स्ट्रोक के हैं. बैक स्ट्रोक में आपने देखा होगा किस तरह से बैक यानी कि आप
योर फेस इज टूवर्ड्स स्काई, और उसके बाद स्विमिंग करना। तो ये जितने भी तरह के स्ट्रोक थे, ही वॉज अ वेल ट्रेन्ड स्विमर एंड नोइंग ऑल दीज स्ट्रोक, उनको आते थे। तो बाय यूजिंग ऑल दीज स्ट्रोक्स ही just measured the length of the Trix Act Island to the Trix Island to Stamp Act Island तक उन्होंने किया। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but the bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and swam on. Miniature is called very small kind of thing, बहुत थोड़ा सा। तो अभी वो बता रहे हैं कि जब वो उस लेक के बिल्कुल बीच में थे, कौन सी लेक है अभी जो जहाँ पे कर रहे हैं, वेंटफोर्थ लेक, जो अभी हमने पढ़ा था। तो वेंटफोर्थ लेक में है अभी, जब वो बीच में थे बिल्कुल, मतलब मिडिल में जो थे, मिडिल में सबसे ज़्यादा गहराई होती है, वहाँ पे थोड़ा सा उनका डर वापस आया। तो जब उनका डर वापस आया, उनको सेंसेशन हुआ कि उस डर का जो वापस आया, और अब उनको क्या लग रहा था कि वो जो डर है वो बहुत थोड़ा सा है, आया तो वापस लेकिन बहुत थोड़े से अमाउंट में वो वापस आया। वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि येस, वेल मिस्टर टेरर, मीन्स व्हेन यू आर इनफ, मीन्स एबल इनफ to have a conversation by meeting your eyes with your terror, so it means you are confident, you have gained victory over your terror. तो उन्होंने कहा कि क्या तुम सोचते हो तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? You can do nothing to me because I have now control on you. It fled and I swam on. Fled is called, fled is second form जिसका मतलब होता है flee. फ्ली इज कॉल्ड भाग जाना। तो उनको क्या लग रहा था कि डर जो है वो भाग गया और वो स्विमिंग करके आगे निकल गए। ठीक है, तो अब उनको डर नहीं लग रहा था। Now here, yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Cornet Cheek Trail to the Meadow Glacier, and camped in the high meadow by the side of the warm lake. Residual doubts is called remaining doubts, and camped is called to sleep without bed outside of the tent. जब हम कभी जाते हैं एक्सकर्शन पे, हिली एरिया पे, तो टेंट लेके जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड कैंप। अपना टेंट लगा के वहीं पे रहना खाना सब करते हैं, सो दैट इज देयर। तो उन्होंने 7 मंथ इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस किया, फिर जुलाई तक उन्होंने 3 महीने खुद प्रैक्टिस किया। फिर उन्होंने हर वाटर बॉडीज़ में, अलग अलग लेक्स, रिवर, हर जगह उन्होंने, वाटरफॉल, हर जगह उन्होंने प्रैक्टिस किया, अलग अलग वाटर एक्टिविटीज़ किया। बट अभी भी वो थोड़े से डाउटफुल थे, जो थोड़े से भी उनके रेसिडुअल यानी कि रिमेन डाउटफुल थे, मतलब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड होना चाहते थे, ज़रा सा भी रिमेन अपने हार्ट में नहीं देना चाहते थे। एंड इसीलिए उनको अपॉर्चुनिटी मिली और वो वेस्ट की तरफ, मतलब जहाँ पे वो थे उधर से वेस्ट की तरफ वो गए। एंड वहाँ पर क्या था, टाइटन टू कॉर्नॉट मेडोज। मेडोज इज कॉल्ड अ फार्म हाउस, बड़ा सा मैदान आप बोल सकते हो। तो वहाँ पे कॉर्नॉट मेडोज थे, टाइटन, टुवर्ड्स टाइटन वो चले गए वहाँ पे जो कॉर्नॉट मेडोज में था। अप टू कॉर्नॉट क्रीक ट्रेल, उन्होंने कॉर्नॉट क्रीक पे चढ़ाई की और वो कहाँ पहुँच गए, मेडे ग्लेशियर्स में पहुँच गए। ग्लेशियर इज़ अ वेरी आइसी प्लेस, आपको पता है, जो बर्फ़ का जमा हुआ होता है, बिल्कुल चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है ग्लेशियर में। वो वहाँ पहुँच गए, मेडी ग्लेशियर में पहुँच गए और वहाँ पे उन्होंने अपना कैंप लगा लिया और वहाँ पे वो जाकर रहने लगे। हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, उस हाई स्पेस में, मतलब ग्लेशियर जो जहाँ पे जिस हाइट पे था उसके पास क्या थी, वार्म लेक। नेम है इसका वार्म लेक, बट एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, आइसी है। वाई? बिकॉज इट इज़ नियर द ग्लेशियर, यहाँ पे ग्लेशियर के पास है तो वो वार्म कैसे हो सकती है, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। यानी कि अब वो वार्म लेक में स्विमिंग करना चाहते थे। तो अगैन एंड अगैन ही वॉज गिविंग अ चैलेंज टू हिमसेल्फ एंड द नेक्स्ट चैलेंज वॉज rather bigger than the previous one. The next morning I stripped, dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as Doc Corporon used to do. I shouted with joy and Gilbert Peck returned the echo. I had conquered my fear of water. दूसरी सुबह उन्होंने अपने कपड़े उतारे। Stripped is called to undress, echo is called repeated sound, जो बार बार आपको गूंज सुनाई देती है। तो उन्होंने अपने को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, उन्होंने डाइव किया उस वार्म लेक में, यहाँ पे वार्म लेक का नाम आ रहा है, और
वो उसके पार यानी कि अक्रॉस द लेक, शोर एंड बैक, शोर मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पर उन्होंने स्विम किया। ऐसा ही एक स्विम पहले डॉग कॉर्पोरॉन कर चुके थे। डॉग कॉर्पोरॉन वॉज वन ऑफ दोज पर्सन हु हैज़ सक्सेसफुली स्वैम इन दिस लेक, वार्म लेक। यहाँ पे स्विमिंग करना इट्स नॉट ईजी टास्क, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वार्म लेक में स्विम किया है। डॉग कॉर्पोरॉन और विलियम डगलस, दीज टू मैन्स वर देयर अमंग ऑल अदर्स जिन्होंने इसमें स्विमिंग किया था। तो ये कोई बहुत छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा वी कैन से लेवल का अचीवमेंट था, क्योंकि विद स्विमिंग इट्स वेरी इजी बट टू स्विम इन द आइसी वाटर इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एबल और वी कैन से ट्रेंड होने की ज़रूरत है, जो विलियम डगलस थे। एंड नाउ ही वॉज डैम श्योर एंड दैट्स वाई ही स्टार्टेड शाउटिंग, ही वॉन्टेड टू एन्जॉय द कॉन्फिडेंस। अब उनको ये पूरी तरह से तसल्ली हो गई थी, सेटिस्फेक्शन हो गया था कि अब उनके मन में कोई भी डर नहीं बचा है। वार्म लेक में उन्होंने स्विम किया था, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। तो जब उन्होंने इस एन्जॉय में, जब वो चिल्ला रहे थे अपनी विक्ट्री को, जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उनकी जो आवाज़ थी वो गिलबर्ट पीक से, यानी कि उस जगह पे गिलबर्ट पीक एक माउंटेन रेंज थी, वहाँ से उनकी आवाज़ गूंजकर बाहर वापस आ रही थी। मतलब जब उन्होंने बहुत तेज़ी से शाउट किया तो उनकी जो आवाज़ थी वो टकराई गिलबर्ट पीक से और दोबारा से वापस उनकी गूंज सुनाई दे रही थी। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, क्या चिल्ला रहे थे वो, आई हैड कॉन्कर्ड माई फेयर ऑफ वाटर, कि मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया है। तो इससे ये सेटिस्फेक्शन उनमें आया था, क्योंकि इसमें सारी मेहनत, डिटर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ उनका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीपर मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। In death there is peace, there is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said all we have to fear is fear itself. Stark terror, sheer और unbelieved और severe terror, जिसके हम बारे में बात कर चुके हैं। अब उन्होंने बताया कि जो डीप मीनिंग उनको फेयर का समझ में आ गया था, उनके अकॉर्डिंग कोई भी जो स्टार्क टेरर होता है, जो सीवियर टेरर होता है, जो उनके साथ भी था, अब उन्होंने उसको जीत लिया था और उसको अप्रिशिएट, यानी कि कॉन्कर्ड इट कैन, that who have known stark terror and conquered it can appreciate, जिसने वो महसूस किया हो वो डर और उस पर जीत हासिल की हो, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। why? because he has experienced death। तो उन्होंने उसका एक्सपीरियंस भी बताया है कि डेथ में एक पीस है। डेथ इज कॉल्ड when everything is stopped, each and every effort, no happiness, no pleasure, no grief, nothing is there, only one thing is left and that is peace। there is a terror only in the fear of death। सिर्फ जो किस में टेरर है, डर किस चीज़ में है, फेयर ऑफ डेथ। जब तक आप डेथ से किसी चीज़ से मिलोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। मतलब जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हम हमेशा मरने से डरते रहते हैं, बट वंस यू आर ऑन द एज ऑफ द डेथ देन एवरीथिंग गॉट्स पीसफुल एंड फिर हमको उससे डर नहीं लगता है। तो यहाँ पे एक रूजवेल्ट ने जो कहा था, रूजवेल्ट वॉज द प्रेसिडेंट, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हमको सिर्फ और सिर्फ डर से लड़ने की ज़रूरत है। यानी कि सिर्फ एक चीज़ है जिससे हमको डरना चाहिए और वो है डर। यानी कि जब तक आप अपने डर पे काबू नहीं पाओगे, आप हमेशा डरते रहोगे। सब लोग मरने से डरते हैं, बट अगर जब सब लोग मरने के बिल्कुल करीब होते हैं, सब कुछ शांत होता है, तब उनको मरने से डर नहीं लगता है। सो द सेम थिंग, द सेम एक्सपीरियंस ही वॉज शेयरिंग एंड as the same proverb has been given by Mr. Roosevelt as well. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. Intensity is called extreme strength of force and sensation is called ability to feel when touching or being touched. किसी भी सेंसेशन का, इन्होंने दोनों एक्सपीरियंस, राइटर बोल रहे हैं कि मैंने दोनों तरह के सेंसेशन को फील किया है। किसका? डाइंग, यानी कि बिल्कुल वो मरने वाले थे उसका भी, और फेयर, जो हमेशा काफ़ी टाइम तक वो सेंसेशन उनके साथ रहा था। जब तक वो स्विमिंग एक ट्रेंड स्विमर हो गए थे तभी भी वो सेंसेशन थोड़ा सा उनके मन में था, तो उसको भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया। और जब वो बिल्कुल मरने वाले थे, मरने की एज पे थे, जब वो बिल्कुल डूब गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था, वो भी उन्होंने फील किया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने दोनों तरह के सेंसेशन फील किए हैं एंड दैट fear of it can produce, यानी कि इससे जो डर निकल सकता है, terror, that fear of it can produce, क्या produce कर सकता है? the will to live somehow। will यहाँ पे किससे पता चलता है? आपकी strength। कौन सी strength?
इनर स्ट्रेंथ। अगर आपकी इनर स्ट्रेंथ है, अगर आपने ये तय कर लिया है नहीं मुझे तो इस डर पे काबू पाना है, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो वो डर, वो टेरर, वो डेथ का सेंसेशन वो आपको नहीं डरा सकता। जबकि वो जो है टू लिव, ये जो विल है वो किससे बड़ी हो जाती है? डर से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसकी जो इंटेंसिटी है आपकी विल पावर की, डिटर्मिनेशन की, वो बढ़ जाती है आपके टेरर से। So now here we have completed this chapter, line by line explanation I have given you. Now we will move on towards some important question answer, but before that I just want to say that once go through the text मैंने line by line यहाँ पे लिया है, but what you need to do, you have to just underline or mark all the keywords and important thing that I told you or discussed over here, because those are the lines and keywords that you have to learn and write in the exam. Okay, so we'll meet with the question answer. This is till here in this video. I will take the question answer not of the textual part, but all those that are there in the previous papers, and they are not in the textual part, but if you will go through with those question answer, you will be prepared with all the upcoming questions or untold question in your from this chapter. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside a fear. Trails is called a series of mark in long line left by someone, मतलब आप बोल सकते हो following line, and brush aside a fear is called to keep aside. किस चीज़ को अलग रख देना? फेयर को अलग रख देना। तो उन्होंने कहा था अब मैं बहुत रिलीज, यानी कि अब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। फेल्ट रिलीज, ऐसा लग रहा था किसी डर ने मुझे पकड़ के रखा है और अब मैं छूट गया हूँ। बिल्कुल कंप्लीटली उनको विश्वास हो गया था अपने ऊपर, सेटिस्फाई थे अब वो बिल्कुल आज़ाद थे चलने के लिए, चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, माउंटेन रेंज मतलब एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए, माउंटेन्स पे, पीक्स पे, वाटर बॉडीज़ पे। नाउ ही वॉज टोटली रेडी। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने अपने डर को एक साइड में रख दिया था। नाउ ही वॉज having no fear, not a least fear in his heart. Okay, so here we have completed these 3 lines were this is the last line of this chapter we have completed. Now we will move on towards the important question answer from this chapter.